Dear students, today we find the state equations from the electrical network. Okay, we know that the state equations we can define as x dot equals to ax plus bu and y equals to cx plus du. Okay, so here the circuit is given. Firstly, in the circuit we check how many the storing elements. How many storing elements? Here we see that there be a two storing elements, one inductor of 1 Henry and one capacitor of 1 Farad. Okay. So here we choose the state variable according to the storing element IL and VC. Okay, IL inductor current and VC voltage across the capacitor. Okay, now from the diagram we maintain the loop equations. Here I1, I2 and I3, and for these three loop equations we write the KVL equations for all three loops. So firstly we see please check carefully this one, 1 Henry 1 di by d3 plus the current moves to 2 ohm resistor, 2 I2 plus I3 plus 1 I3 minus I1. Okay, I3 basically we can say that I3 is the IL. So x1 dot equals to 2 I2 plus x1 minus I1. So from here we can see that the two x1 and this x1. So this is the equation x dot equals to x dot x1 dot plus 3x1 plus 2I2 minus I1 equals to 0. This is the equation number 1. Here in the same condition, in this one loop, in this loop we can say that the I1 is moved to the 4 ohm. So this is 4 I1. Please check, 4 I1 plus I1 and I2 is in opposite direction. I1 minus I3 plus VC equals to 2 volt. VC here we have choose the x2. So put the values, then see that the I3 is the x1 and VC is the x2. So 5 I1 minus x1 plus x2 equals 2. So this is the value of I1. I1 equals to 2 plus x1 minus x2 by 5. Okay. In the same way, we check the next one. This one. According to the direction of the current, I2, 4 I2, okay, plus 2 I2 or I3 is in same direction, plus I3, 2 I3 plus VC equals to 4. The same here, I3 is the x1 and
Vc is the x2. So from here we find the value of I2, 4 minus 2x1 minus x2 by 6. These value of I1 and I2 from equation number 2 and 3 put in the equation number 1. Here we put the value of I1 and I2. जब वैल्यू हम पुट करते हैं तो पुट करने पर ये कुछ कंडीशंस आती हैं और यहाँ से हम हमारी जो वैल्यू निकल कर आती है x1 की डॉट की, वो ये वैल्यू निकल कर आती है। ओके, और इसको जब हम ट्रांसफ़र करते हैं राइट हैंड साइड में, देन x1 डॉट इक्वल्स टू -32/15 x1 प्लस 2/15 x2 माइनस 14/15। ये क्वेश्चन नंबर 4 x1 डॉट के लिए निकल आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है सेकंड स्टोरेज एलिमेंट के लिए, मतलब कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं। तो KCL जब आपने अप्लाई किया इन हियर एट नोड G, एट नोड G पर हमने इस जगह पर अप्लाई किया, देन I1 एंड I2 इक्वल्स टू C dVc/dt। C आपका 1 है तो आ गया dVc/dt। dVc का मतलब क्या हुआ, dVc/dt का मतलब हुआ Vc डॉट, और Vc डॉट का मतलब क्या हुआ, x2 डॉट, क्योंकि यहाँ पर हमने Vc इक्वल्स टू x2 मान रखा है इस जगह पर। ओके, तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो ये निकल कर आएगी I प्लस I2 इक्वल्स टू CVdC/dt। C आपका 1 है, dVc/dt का मतलब क्या हुआ, Vc डॉट, और Vc डॉट क्या हुआ, x2 डॉट के बराबर। एंड हियर we put the value of I1 and I2. Okay, so from here we get the value of x2 dot, this one x2 dot equals to minus 2/15 x1 minus 11/30 x2 plus 32/30. Okay, and these two equation we show in a matrix form, this one. So this is the solution for the input equation. And the output equation, we check that the storing element capacitor is the output. So here we see that the output is attached with the I1 and I2. So from here Y1 equals to I1 and Y2 equals to 2I2 due to this resistor, this one and this one. Okay, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई y1 इक्वल्स टू I1 एंड y2 इक्वल्स टू 2I2। वी पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। तो फ्रॉम हियर वी पुट दीज टू इक्वेशन इन अ आउटपुट इक्वेशन, दिस वन, एंड द आउटपुट इक्वेशन वी नो दैट y इक्वल्स टू Cx प्लस du। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ द सेकेंड न्यूमेरिकल इज दैट here in this numerical we also find out the state equations. So how many storing element here? Here the storing elements, these are 1 2 3 3 inductors and 2 capacitors. It means 5 storing element. It means here we choose the 5 state variables. Okay, 5 state variable we will choose. So here this one is x1 x2 x3। चेक कर लेते हैं, अगर ये आपकी लूप करंट अगर मेंटेन करते हैं तो I1 x1 I2 x2 I3 x4। सिमिलरली Vc1 को आप चेक कर लो, Vc1 को आप कर लो x4, और Vc2 आपका ये वाला है, इसको हम कर लेते हैं x5। ठीक है, तो अगर मैं पहले लूप के लिए बात करूं, फर्स्ट लूप के लिए, तो फर्स्ट लूप के लिए हमारी जो बात चलेगी, तो आप देखो 1 माइनस I1 माइनस di1/dt माइनस Vc1 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू बन गया आपका। ठीक है, अब आपको मालूम है I1 जो है वो x1 के बराबर है, लाइक दिस,
di1/dt का मतलब क्या हुआ, i1 डॉट को हमने क्या रख दिया, x1 डॉट, और vc1 आपका किसके बराबर है, x4 के बराबर है। तो ये हमने स्टेट वेरिएबल की फॉर्म में रख दिया, स्टेट वेरिएबल की फॉर्म में हमने रख दिया। स्टेट वेरिएबल की फॉर्म में रखने पर हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आ गई, ये वैल्यू निकल कर आ गई कि x1 डॉट इक्वल्स टू -1 प्लस x1 प्लस x4। अब यही सेम कंडीशन हमने रखी सेकंड वाले के लिए, तो देखो Vc1 प्लस di2/dt प्लस Vc2, क्योंकि ये वाला आपका जो है कैपेसिटर इन होगा, ठीक है। Vc1 हमारा क्या है, x4 है, Vc2 हमारा x5 है, di2/dt का मतलब क्या हुआ, i2 डॉट का मतलब हुआ x2 डॉट। तो देखो यहाँ पर हमने, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इसी टाइप से हमने थर्ड इक्वेशन लिख ली थर्ड के लिए, तो थर्ड इक्वेशन आपकी ये वाली हो गई, ठीक, ये इक्वेशन हो गई। अब ये तीन इक्वेशन आने के बाद अब आपको क्या, ये तीनों आपके स्टोरिंग एलिमेंट कौन कौन से हो गए, तीनों आपने इंडक्टर ले लिए। अब आपको कैपेसिटर्स के लिए भी करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर के लिए सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप इस नोड पर चेक करो, इस नोड पर चेक करो, इस वाले नोड पर। इस नोड पर आप देखोगे तो I1 यूँ जा रहा है और I2 यूँ जा रहा है, अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो I1 माइनस I2 इक्वल्स टू क्या हो गया, C dVc1/dt। इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, I2 माइनस I3 इक्वल्स टू C dVc2/dt। ये दोनों इक्वेशन आपकी यहाँ पर आ जाएंगे, ये दिस वन देखिए आप, ये आ गई। I1 और I2 आपके x1 और x2 के बराबर है, dVc1/dt का मतलब Vc1 डॉट विच इज x4 डॉट। ऐसे ही I2 माइनस I3 इक्वल्स टू C dVc/dt, तो ये वैल्यू आपकी इसके बराबर आ गई। तो यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, एक स्टेट इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए, तो ये आपकी क्या आ गई, स्टेट इक्वेशंस की फॉर्म में आपका ये प्रॉब्लम आ गया। अब आता है आउटपुट इक्वेशन। आउटपुट इक्वेशन के लिए आप कैसे करोगे, अब आउटपुट इक्वेशन के लिए देखो आप, अगर आप देखेंगे तो आउटपुट इक्वेशन के लिए हमने कहा रेजिस्टेंस को हमें चेक करना है। तो रेजिस्टेंस को चेक करते हुए अगर आप चलोगे तो एक तो आउटपुट आपको इसके रेस्पेक्ट में मिलेगा, ये वाला, तो एक मिल गया आपका y1 इक्वल्स टू I1। अब एक रेजिस्टेंस आपका ये है 2 ओम का, तो यहाँ से मिलेगा y2 इक्वल्स टू 2I3, y2 इक्वल्स टू 2I3 और y1 इक्वल्स टू I1, ठीक है। तो अब आप देखो, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा ये चीज़ देखिए आप। तो यहाँ से y1 इक्वल्स टू क्या हो गया, I1 विच इज़ द x1 और y2 इक्वल्स टू 2I3 2x3, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये आपकी आउटपुट इक्वेशंस मेंटेन कर दी। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन आपका यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाता है।